So after analyzing our previous total frame, we will try to shift a little bit complex type of frame. In this frame, AB and CE, two legs are there. Two legs of columns are there. The procedure, whatever we did in our last question, that will be used here also, with one little more understanding. That question, I have selected that question for many reasons. That question has been selected for many reasons. With the help of this question, I will try my best to explain many more concepts that I will try to explain. So in this question, what is given? BC and CD. It is a beam, and AB and C, it is a column. These are the columns. And we want to analyze that frame. So how many degree of freedom is that? How many degree of freedom? Kinematic indeterminacy. 1. Okay. यहाँ पर थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, यहाँ पे तो 0. So it will be 1 here, 2 here, this one. Theta A, it will be theta B and del B, और यहाँ पे del C. टोटल कितना हो गया? 2, 4, 4. If we are neglecting this horizontal, इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो कितना बचा? 3. Neglecting horizontal degree of freedom. Neglected horizontal degree of freedom. We are assuming that no any member are either abstract or compressed. So 3 degree of indeterminacy, 3 degree of kinematic indeterminacy of this frame has. इसको जरा ध्यान से देखो. लुक दिस फ्रेम वेरी केयरफुली. कहीं पे एंड मोमेंट मालूम है क्या आपको? कहां पे मालूम है? ए पे मालूम है. व्हाट, इसका क्या मतलब है? जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी, आउट ऑफ दीज 3, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हिडन फॉर्म पे नोन है. इट इज नॉट अननोन बिकॉज द मोमेंट इज नोन. कितना है मोमेंट? MBA इज 0. वैल्यू ऑफ MAB, यस, वैल्यू ऑफ MAB इज is 0. That's why it is not unknown, it is known. Okay. So finally we have to calculate theta B and theta C only. Okay, we have to calculate theta B and theta C only. If we want to calculate this, if we want to analyze this using stiffness method, then stiffness matrix of 2x2 order is required only if we want to save our time. Okay, otherwise you can calculate also 3x3 के मैट्रिक्स करें और फिर करें. So you have the option. Okay. So first of all, find out the fixed moment for every segment. First step is
फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट आप कैलकुलेट करें और मैं इधर फिगर में लिखूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। आप कैलकुलेट करें फिर वैल्यूज मुझे बताएं। फिक्स्ड इन मोमेंट, दिस इज ए बी, नहीं ए इज दिस, बी बी, सी इज दिस, डी इज दिस, C is this, MFAB, MFAB, MFAB क्या होगी वैल्यू? MFAB वैल्यू बताओ क्या है? 0। लोड है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। इसी तरीके से MFBA कितना होगा? 0, नो लोड। सो इसको हम 0 लिखना चाहें, हम कैसे लिखें? डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ऐसा 0 0। इस वाले में MFBC कितना? पॉइंट लोड इज देयर 10 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, PL/8 भी होता है, वो भी यूज कर सकते हो। कितना है ये? वो भी माइनस का, माइनस है क्या? 5, इट कम्स टू बी -5 एंड MFCB +5 क्या? +5 का। So this value is clockwise -5 and this is +5. Okay. Similarly, value of MFCD WL²/12 क्या? -WL²/12 means 20 into L square. L square means 4 square divided by 12. How much is that value? 26.67. Similarly, value of MDC, तो ये प्लस हो जाएगी 26.67। मेंशन करें, कैसा मेंशन किया जाए? क्लॉकवाइज, ये तो माइनस का है, तो ये हम इसको -26.67 और ये इसको मेंशन करें 26.67। Similarly, for MFCE equals to MFEC, दोनों को 0 लिखें क्या? लोड इसमें भी नहीं है, that value will be 0. Okay, that value will be 0. तो इसको भी बना लो 0 0 0। What is our next step? These are the fixed in moment. क्या करना है हमें फिर? We have to apply
क्या करें? डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी हैव टू प्रोवाइड द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 by 1। और उससे पहले क्या करें? यहाँ पे ये क्या है? हिंज है यहाँ पे, तो 0 तो पहले से ही है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई ट्रांसफर करेंगे क्या? कोई लोड लगाना ही नहीं पड़ेगा, बस इसको कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे फिक्स की जगह पे हिंज है। बात समझे सभी लोग? कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा क्या? 0 है ना यहाँ पे, पहले से 0 है, तो यहाँ पे मोमेंट तो देने की जरूरत है नहीं, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बस ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कर क्या है? हिंज है। ओके, सो फिक्स्ड एंड मोमेंट विल नॉट बी मॉडिफाइड हियर, सो दैट विल बी सेम मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट, दे आर सेम हियर। क्यों सेम हो गया? क्योंकि क्या है? These two values are 0, these two values are 0। कोई जरूरत ही नहीं है, पहले से यहाँ पे कुछ आए नहीं, इट इज पहले से 0 है। सभी ध्यान से समझे, क्योंकि अगर इसकी कुछ वैल्यू होती तो हम क्या करते? इसको मॉडिफाई करते, 0 बनाते इसको माइनस साइन में लगा के, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड। बात सबको समझ में आ गई ना? तो यही मॉडिफाइड हो जाएगा। एक काम हमारा बच गया, यहाँ पे लोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए एक काम हमारा बच गया, आसान हो गया। अगला काम क्या करें? वी हैव टू गिव थीटा बी इक्वल्स टू 1, वी हैव टू प्रोवाइड थीटा बी इक्वल्स टू 1, थीटा बी इक्वल्स टू 1। यहां पर वी हैव टू प्रोवाइड थीटा बी इक्वल्स टू 1। सो कैसे प्रोवाइड करेंगे? देखो यहां पे हिंज किया जाए, ऐसा क्या? ऐसा क्या? थीटा बी इक्वल्स टू 1, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, दिस वन। थीटा बी इक्वल्स टू 1, और यहां पर भी क्या? एंटी क्लॉक हो गया क्या? अब ठीक है, ठीक है ना? ये थीटा बी इक्वल्स टू 1, और यहां पर भी दिस वैल्यू थीटा बी इक्वल्स टू 1। कितना मोमेंट लगेगा? बताएं मोमेंट कितना? ये 2EI, तो 8EI बाई एल। क्लियर? देखना यहां पे जितना EI है उतना ही, तो ये हो जाएगा 8EI बाई एल। 4EI बाई एल होगा, बट I इज डबल टाइम। और ये कितना ट्रांसफर हुआ इधर? हाफ, तो ये हो गया 4EI बाई एल, 4EI बाई एल इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? यहां पर कितना है? ये हिंज है यहां पे, हाउ मच? 3EI बाई एल, यस 3EI बाई एल, और ट्रांसफर कितना हुआ? 0। क्या बेटा? एक्चुअली है ना, हिंज है। कहां पे है? व्यू पॉइंट पे। विदाउट हिंज आप कैसे रोटेट कर पाओगे? विदाउट हिंज कैसे रोटेट करो? खोलना पड़े ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं ना, यू आर गिविंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ज्वाइंट बी, यू आर गिविंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ज्वाइंट बी। बी को ही तो खोला है हमने, बाकी सब तो एज इट इज है। ओके, यहां पे अगर हमने मॉडिफाइड लिख रहे हैं तो यहां पे आप ऐसा कर लो, इसी में कर लो, ऐसे ही चेंज कर लो। ये मॉडिफाई अगर हमने कर दिया तो मेक इट एज दिस वन। अब इसमें बस अंतर क्या है? इसमें
थीटा बी इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये है थीटा बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली फॉर थीटा सी इक्वल्स टू 1, फॉर थीटा सी इक्वल्स टू 1, थीटा सी इक्वल्स टू 1 में ये बी सी एज इट इज रहेगा और ये ऐसा क्या सी थीटा सी इक्वल्स टू 1, सी पॉइंट इज दिस, यहाँ पे हिंज, बाकी सारा का सारा जो जैसा है पहले ही इस वाले में। क्लियर? तो दे दो यहाँ पे ऐसे थीटा बी इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कैसा जाएगा क्लॉकवाइज, दिस वन ना, ऐसे ये मोमेंट, ये मोमेंट, ये मोमेंट, वैल्यूज डिसाइड कर लो, यही तो मोमेंट होगा फॉर थीटा सी इक्वल्स टू 1। टेक इट आउट। ये थीटा बी के लिए, दैट फॉर थीटा सी इक्वल्स टू 1। दैट इज फॉर थीटा सी इक्वल्स टू 1। क्लियर? चेक करो, सही है? जबरदस्ती मत बैठना बेटा, जब तक चीज नहीं अंदर दिमाग में जाए मुझसे पूछते रहना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे भागने की जरूरत नहीं है मुझे, सफिशिएंट टाइम है, टाइम कम पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? नहीं क्लियर? इसमें क्या है, थीटा बी इक्वल्स टू 1, थीटा बी इक्वल्स टू 1 में केवल हमने बी पॉइंट को रोटेशन प्रोवाइड किया है, बी पॉइंट पे हिंज किया है, इस वाले में थीटा सी इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं। कहां पे थीटा सी इक्वल्स टू 1, हाँ तो 1 होगा। यहाँ पे 1 लिखने से क्या फायदा, मोमेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिखें जिसको हमें काम है। ए पे यहाँ पे ये तो मॉडिफाइड करने पे यहाँ पे हिंज लगा दो, क्योंकि जीरो तो पहले ही था, पहले कुछ मतलब नहीं था, तो पहले स्टेप हो चुका ना हमारा। मॉडिफाइड कब आया, जब यहाँ पे इसको हमने फिक्स को हिंज किया था। क्लियर? पहले से ही वो हिंज है। हाँ, सो वैल्यू बताओ कितना हुआ ये, ATI/L, और ट्रांसफर कितना हुआ 4EI/L। क्या इसी तरीके से इधर ATI/L, ट्रांसफर कितना हुआ 4EI/L, और यहां पे 4EI, अरे LL क्यों लिख रहा है, L की जगह पे वैल्यू लिखो ना। L कितना है, इसमें भी L काट रहे हो। 4EI कितना हो गए 4, तो EI हो गया ये 4, तो यहां पे इसको करो केवल, ये 2EI हो गया, दैट कम्स टू बी 2EI, 2EI, ये हुआ EI, ये 3EI/4। इसी तरीके से यहां पर ये 4 है, तो ये हुआ जाके 2EI, 2EI, और ये हुआ केवल EI। सिमिलरली ये वाला 2EI, और कैरी हुआ कितना EI, और यहाँ पे 4EI/4 मीन्स केवल EI, और ट्रांसफर हुआ कितना EI/2। और ये कैसा डायरेक्शन कैसा बनाऊं, क्लॉकवाइज बनाना है मुझे, यहाँ पे ऐसा या ऐसा, ये क्लॉकवाइज कैसे, अच्छा एंटी क्लॉक हो गया, ओके ठीक। कहाँ पे ई पॉइंट पे, यहाँ पे वो है ना
क्या है यहाँ पे, फिक्स है ना, केवल ये वाला हिंस था ना, तब तो जाएगा ना, कैरी होगा। क्लियर? आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी आर एबल टू राइट द क्या, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वी आर एबल टू राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। लिखें एम ए बी की वैल्यू लिखें, कितना होगा एम ए बी, एम ए बी वैल्यू कहां से शुरू किया जाए, ये वाला, ये पॉइंट है ना दिस, यहां पे 0 0 प्लस 0 प्लस 0 इट इज 0। एम बी ए की वैल्यू यहां पे दिस इज 0, दिस इज 0 0 प्लस 3i/4 3ei/4 मल्टीप्लाई बाई थीटा बी, और यहां पर देखो 0, कुछ नहीं, एम बी ए हो गया। नेक्स्ट इज एम बी सी, राइट वैल्यू ऑफ एम बी सी -5 प्लस कितना 2ei थीटा बी प्लस कितना यहां पे ei इंटू थीटा, ओ हाँ ei इंटू थीटा से। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एम सी बी, बेटा सभी वैल्यू यहां पे लिखो कॉपी में, अपने आप लिखो, अपने आप लिखो, मैं यहां पे फिर चेक करूंगा। राइट बाय योर ओन, write the slope difflection equation using the diagram shown here. Write slope difflection equation by your own. लिख लिया बेटा, चलो चेक कराओ। एमबीसी तो लिख लिया था, एमसीबी सी कहां पे, एमसीबी ये वाला ना, हाँ 5 प्लस यहां पे ei थीटा बी, और यहां पे कितना हुआ 2ei थीटा सी, यही तो लिखा है ना। एम सी बी हो गया, फिर एम सी डी -26.67 प्लस कितना यहां पे 0। ओके यहां पे देख लो कितना ये 2ei इंटू थीटा सी। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एम डी सी, वैल्यू ऑफ एम डी सी 26.67 प्लस ये 0, यहां पर ei थीटा सी, और क्या बचा अब
ये m, ये CE क्या, MCE की वैल्यू, MCE की वैल्यू यार 0 0 प्लस यहां पे भी 0, यहां पर EI थीटा C ओनली 0 प्लस EI थीटा C, ये हो गया ये। देन M कौन सी, EC, EC कहां पे 0, यहां पर भी 0, यहां पे तो 0 प्लस EI थीटा C बाई 2। लिख गए सारे, कुछ बचा तो नहीं, नहीं। ओके, नोट करके लिखो, नोट। जरा ये क्वेश्चन देखो, MCE एंड MEC क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है क्या? MCE बराबर हाफ ऑफ MEC है क्या? देखो है क्या? है, ऐसा है क्या? आधा है क्या? देखो यहां पे MCE की वैल्यू, नहीं उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, EC होना चाहिए ना, MEC बराबर CE है क्या? है ना, है कि नहीं? मतलब यहां पे मोमेंट इस सेगमेंट के लिए, ये वर्टिकल सेगमेंट CE सेगमेंट पे, यहां पर मोमेंट, यहां के मोमेंट का क्या होगा? आधा। कब? जब यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड ना लगाओ, तब। समझे बात को? हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, always remember when there is no any fixed moment in vertical legs। यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, there is no need to write that, if we are writing that we are wasting our time। मालूम है हमें, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ये सब चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे एग्जाम में। जो चीज लिखने की जरूरत नहीं है उसको लिखेंगे तो क्या होगा? हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। क्लियर? इसको लिखेंगे नहीं, जब ये कैलकुलेट हो जाएगी, MCE कैलकुलेट हो जाएगी, अपने आप लिख देंगे हम। क्लियर? एक लाइन इसमें और लिख लो, इन एब्सेंस ऑफ इफ लेग CE, इफ वर्टिकल लेग, ऐसा लिखो, इफ वर्टिकल leg does not has any क्या external loading, does not has any external loading, that is fixed end moment equals to 0। जब लोडिंग नहीं होगी तभी फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कहा जा सकता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 या कोई लोडिंग ना हो। ओके, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, हमेशा। वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें जो है ना समय सेव करती हैं। ठीक है, इसमें कोई नया चीज बताया क्या मैंने? इट इज नॉट न्यू, नई चीज है क्या? इक्वेशन है, बस डायरेक्ट हमें यूज रखना है, याद रखना है, कोई नया चीज नहीं बताया मैंने। यही सारी चीजें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, कोई नई चीज नहीं होती। ट्रिक्स आर नॉट न्यू, ट्रिक्स आर नॉट न्यू, बस तो उसको तो हम क्या है ना आप यूज करते हैं आगे, टू सेव अवर टाइम, टू सेव अवर टाइम। ओके, आगे काम मालूम है आपको क्या है? यू हैव टू मेक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहां पे? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, मीन समेशन ऑफ सिग्मा, समेशन ऑफ m BA
BC इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एट पॉइंट C क्या करेंगे, MCB, MCD एंड MC इक्वल्स टू 0। जरा दोनों पॉइंट पे लगा के मुझे वैल्यू बताओ, थीटा बी की, EI थीटा बी की, EI थीटा सी की। अप्लाई करो। नेक्स्ट, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पहले इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट B दैट इज MBA प्लस MBC इक्वल्स टू 0। MBA, this one, MBA and BC, these two will be used, and by using that we will get, क्या मिलेगा मैं, यूजिंग दैट मुझे वैल्यू डाट बताओ, EI थीटा एट B, और दूसरी इक्वेशन आप अप्लाई करोगे एट C, पे अप्लाई करोगे MCB प्लस MCD प्लस MCE इक्वल्स टू 0। मुझे वैल्यू बताओ EI थीटा B की, EI थीटा C की, कैलकुलेट करके बताइए। EI थीटा B की और EI थीटा C की दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। हाँ ठीक है। सो वैल्यू ऑफ EI थीटा B इज कैलकुलेटेड एज 0.261। आया? कितने लोग? कैलकुलेट करके लिखना, ये कॉपी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आज कॉपी की है तो बेटा फिर आगे भी दिक्कत होगी। एंड दैट अनदर इज 4.282, करेक्ट। 4.282, ओके। आगे का काम आप समझ ही गए होंगे। आगे काम क्या है? यू हैव टू पुट द वैल्यू टू फाइंड द फाइनल एंड मोमेंट। यू हैव टू पुट द वैल्यू इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन टू गेट द एंड मोमेंट। वैल्यूज बताएं बेटा जल्दी। MAB तो हमें पहले से मालूम था, MBA इधर लिखें। सो आफ्टर डूइंग दिस फाइनल एंड मोमेंट, फाइनल एंड मोमेंट वैल्यू मुझे चाहिए MAB की जो कि पहले से 0 है, एंड दूसरी चाहिए MBA 0.195, दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे MBC की। MBC कितनी है बेटा? 0.196। दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे MCB की, कितना? 13.821। फिर मुझे चाहिए वैल्यू MCD की, कितना? 18.1। फिर मुझे चाहिए वैल्यू किसकी? MCD, MDC की 30.95। MDC हो गया। MCE की वैल्यू कितना? 4.28 और MEC की वैल्यू
2.14. Let me check. 195 MBA, correct? हाँ, ये भी करेक्ट. 13.821, करेक्ट. और 30 पॉइंट, यस करेक्ट. यस, दीज आर द करेक्ट वैल्यूज. दीज आर द करेक्ट वैल्यूज. आगे काम आपको पता ही चल गया होगा. यू हैव टू प्लॉट द BMD. प्लॉट करो जरा. यू हैव टू प्लॉट द BMD. You have to plot the BMD. So before plotting, you have to mention the values whatever you have calculated. MAB, AB is 0, no need to write here. MAB, BA this one, plus का है ना, प्लस का, तो क्लॉकवाइज ऐसा क्या, दिस वन, दिस वन 0.195 एंड सभी जरा वैल्यू जरा उसमें मुझे विद साइन बताओ, क्योंकि करना होगा ना आगे रिएक्शन वगैरह कैलकुलेट करना. MBC कैसा साइन बताऊं मैं, ऐसा MBC ये वाला ना, कितना 0.195 यहां पे C पॉइंट पे, ऐसा क्या, कितना है CB 13.821 और इसके लिए CD के लिए माइनस का है क्या, माइनस का ऐसा 18.1 और फिर इधर का क्या, ऐसा कितना है ये C 4.28 और ये वाली प्लस माइनस 30 प्लस का, तो ये डायरेक्शन में क्या 30.95 एंड हियर प्लस में, तो प्लस में कैसा बताओ, ये डायरेक्शन या ऐसी डायरेक्शन, ये वाली ऐसी वाली ना, और ये लिखूं मैं 2.14. These are the values whatever we have calculated in plus sign. Okay? हाँ, कोई गलत, किसने कहा, any doubt, any confusion? So after having these values very easily we can plot the BMD. We can plot the BMD. So BMD प्लॉट करने के लिए थोड़ा फिगर बड़ा बनाओ, ऐसा ये पॉइंट A, दिस पॉइंट B as C, E और ये D, ऐसे थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया क्या, AE ऐसे. AB के लिए लोड है क्या कुछ, आपको मैंने बताया था. इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको AB के लिए थोड़ा सा घुमा लो इधर, ऐसे ऐसे क्या, समझने के लिए तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा क्या, और ये कैसा है, ये 0.195. लोड पूछा ही नहीं इसमें. इधर वाला भी जरा देख लो, इसको कहाँ घुमाना पड़ेगा, लोड है ही नहीं, किधर भी घुमाओ. अब अपनी सुविधा के लिए कहीं भी घुमा, इधर को घुमा लेते हैं. ये पॉइंट C, ये पॉइंट E, ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज 2.14 और ये इधर को ही लगेगा क्या, ठीक है ना.
ये सुविधा के लिए बनाया है हमने। दिस इज ओनली फॉर आवर हेल्प। क्या बेटा? कहां पे? इसको ओके ओके, तो ऐसा करें ना, इसको ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका बीएमडी प्लॉट करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये वाला उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, ये तो ध्यान रखेंगे। सो चलो किया जाए। यूडीएल इसमें कुछ है, ये कुछ लोड है क्या एबी के लिए? नो लोड, बस केवल ये है एन मोमेंट है। यहां पे कितना? 0 0। यहां पे कितना है? 0.15। तो इसको क्या किया जाए? 0.1 ऐसा ही यहां पे ऐड कर दिया जाए। इसका क्या बीएमडी बनेगा इस वाले का? इसका बीएमडी यहां पे 0, लोड कुछ है नहीं, यहां पे 0.195 ऐसे क्या, और ये क्या माइनस का, क्या पूरा का पूरा क्या होगा? माइनस का। सो वी विल हैव दिस पार्ट। क्लियर? एंड मोमेंट की वजह से ही ड्यू टू एंड मोमेंट ओनली, इंटायर माइनस का। एंड दैट वैल्यू इज 0.195। ओके, सिमिलरली इसके लिए बनाओ, बीसी के लिए। बीसी के लिए क्या है? पॉइंट लोड है। अच्छा, पहले इस लेग का भी बना लेते हैं, इस लेग का ही बना लेते हैं, अदरवाइज ये इरेज करना पड़ेगा ना मुझे। इसका बीएमडी कैसा होगा देखो जरा, पहले तो यहीं पे बना लो समझने के लिए। ओके, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे बनाओगे तो गलत होने की संभावना है। लोड है क्या इसमें? कुछ नहीं है। ओके, ये वाला डायरेक्शन सही, तो ये क्या ऊपर ही बनेगा? क्या ऊपर बनेगा 2.14, और ये वाला क्या हो जाएगा? नीचे आएगा क्या? कितना? 4.28। ऐसा क्या? ये तो माइनस का और ये किसका? प्लस का। ये बड़ा आसान बात नहीं है, इसको जरा समझ लो कैसे हुआ ये। यहां पे हम लोग करते हैं ना ऐसे, अगर ये आता है ऐसे आता है, ठीक है, तो हमने कैसे प्लॉट किया था इसको? यहां पे जैसे इसकी वैल्यू ये सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये बी, ये ए, और पूरा माइनस लिखा था ना, लिखा था ना, तो ये वाली वैल्यू तो वही है, इसका मतलब ये माइनस ही होगा। और ये वाली वैल्यू क्या है इधर? उल्टा आ गई क्या? तो ये जो माइनस ना हो गया अब क्या हो जाएगा इसको? इस जगह पे बात समझ में आई? दैट वैल्यू विल बी प्लस, और जहां पे 0 हो रही है देख लेंगे कहां पे 0 हो रही है। क्लियर? दैट वैल्यू विल बी प्लस, दैट वैल्यू विल बी माइनस। क्लियर? ये वाला हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, दिस वन, क्योंकि इसका हमने बताया था आपको। ये लेफ्ट पार्ट अगर ऐसा है, लेफ्ट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसमें क्लॉकवाइज है, तो ये है एंड मोमेंट का बीएमडी। क्लियर? तो इसको कैसा बनाया जाए? ये कैसे घूमेगा? ये पॉइंट कौन सा है? सी। ये पॉइंट ई है, नीचे लाना है इसको, तो नीचे लाना है, तो ये इधर क्या नहीं, ये ऐसे इधर आएगा 2.14, नहीं ऐसे 2.14, और ये इधर गया 4.28, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें क्या? और क्या लिखें? इसको माइनस लिखें, और इसको क्या लिखें? क्लियर?
कोई डाउट किसी को? प्लस माइनस में फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपको पहले से हमने नोट करा रखी है, ये अगर भूल गए हो तो कहीं नोट कर लेना। अगर एंड मोमेंट लगे हुए हैं, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका बीएमडी ऐसे बनेगा। यहाँ पे ऑर्डिनेट ए ऑर्डिनेट, यहाँ पे ऑर्डिनेट बी, दोनों को ज्वाइन कर दो, जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस। अगर इसमें से कोई डिफरेंस है तो वो साइन उसका क्या होगा, बदल जाएगा। अब जैसे हमारे केस में ये वाला है, तो इससे मैच करो, बी सेम है, प्लस का है, तो क्या करेंगे 2.14 ऊपर को लिख दिया। ये वाला इससे मैच किया, क्या हुआ, अपोजिट हो गया, तो इसको नीचे ले गए। ओके, अब नीचे ले गए तो अपने आप प्लस माइनस वाला हो गया। लाइन तो हमें ज्वाइन करना ही करना है, दिस वन है, दिस वन ज्वाइन दिस। ओके, ये प्लस का, ये माइनस। जो एनी डाउट और किसी को? लेग्स का बन गया, बाकी ऊपर का तो आसान है ही है। ओके, आप खुद बना लो। ये वाली चीज जो बताया मैंने, इधर घुमा के ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी गलत नहीं होगा, नेवर। ओके, आगे का कर लेते हैं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नाउ फॉर बीसी, बीसी के लिए पॉइंट लोड तो कितना हो जाएगा, मिड पे है। ओके, कितनी वैल्यू आएगी, PL/4, यहां कहीं पे कितनी, PL/4 कितना हो गया, 10, तो ये हो गया 10 इंटू 4/4/4 10, सो दिस वैल्यू इज 10 की। ओके, और कितना मोमेंट, सेम डायरेक्शन में, सही है, ऊपर ही जाएगा। पॉइंट ये सेम, इसको यहां पे ऐसे लिखा करो बेटा, 0.195, इसका मतलब ये दोनों साइड के लिए हो गया। देखो इधर, इस साइड के लिए भी, इस साइड के लिए, बार बार क्या करोगे लिख के। ओके, यहां पर सी पॉइंट पे 13 कहां पे, ये 13, तो इससे ऊपर जाएगा, यहां पे 13.821, और क्या करें, इसको जोड़े क्या, ऐसे। किसके लिए हो गया ये, दिस इज फॉर बीसी, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। क्लियर? सीडी के लिए बना लोगे क्या, क्या है सीडी पे, यूडीएल है, तो पैराबोला बनाओ। WL²/8 कितनी वैल्यू है इसकी, 20 इंटू 4² डिवाइडेड बाई 8, कितना आया, 40। सो ये और भी ऊपर बना, काफी ऊपर बन जाएगा ये ऐसे, एंड दैट वैल्यू इज 40, दैट वैल्यू इज 40 WL²/8। ठीक है, एंड मोमेंट देख लो, एंड मोमेंट कितना है यहाँ पे, 18 पॉइंट, तो थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाऊं मैं, यहाँ पे 18.1, और ये पहले कितनी थी ये वाली, 13.821, और यहाँ पे कितनी है 30 पॉइंट, तो देन इट विल बी 30। ये थोड़ा और भी स्केल जो मैं डिस्टर्ब हो गया ना, आप लोग सही से बनाइएगा। दिस वैल्यू इज 30.95। इसको एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा बना दिया, सही कर दूं क्या, आप चलो समझ लेना, ये ऐसी चीज हुई। ओके, सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, दिस इज द कंप्लीट बीएमडी, दिस इज द कंप्लीट बीएमडी। और रही बात रिएक्शन वगैरह की, तो आज मैं बता ही चुका हूं। ओके, तो इसमें नीचे लिख लेना, आफ्टर मेकिंग बीएमडी कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स आल्सो, कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स आल्सो। अब मैं उसके लिए यहां पे पहले बता चुका हूं, अब यहां पे समय नहीं दूंगा, करिएगा आप लोग घर पे। कैलकुलेट ऑल सपोर्ट रिएक्शंस,
ओके। तो आज मैंने एक चीज आपको याद रखने को बोली है। क्या चीज याद रखने को बोली है? हाफ वाली। ओके। अब एक बहुत बड़ी चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, मतलब अभी इस लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे। यहां तक समझ? इसको इरेज करूं मैं, आगे चलो। ओके। देखो सभी, इस पार्ट की तो एनालिसिस हमने कर ही लिया। अब मैं क्या करूं, यहां पर मैं एक लेग और ऐड कर दूं डी पॉइंट पे। यहां पे फिक्स सपोर्ट हटा दूं, यहां पे ये करूं और यहां पर ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं यहां पे, और यहां पर ये यूडीएल ये कर दूं मैं यहां पे, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर और ये 10 किलो न्यूटन। सेम डिस्टेंस 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2i, 2i, i, हाँ वही, ये तो सेम ही है। यदि आपके पास ये फिगर है, ये स्ट्रक्चर है, if you have this structure, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बहुत ज्यादा है ना। अब फाइनली में हाँ बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं सिमेट्री। ऐसे गधों की जैसे इसको सॉल्व करना शुरू नहीं कर देंगे सारी, ध्यान देना। हमने ऐसा नहीं है कि इसको हम आंख बंद करके शुरू हो गए। भाई शुरू हो गए तो क्या, काम तो भाई करना ही है, आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है, समय बर्बाद होगा, फायदा क्या है। तो जहां पे सिमेट्री हो, सिमेट्री कहां पे दिख रही है कहीं पे, कहां से, ये यहां से, ये क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो इधर की वैल्यूज आई हैं वही वैल्यूज क्या होंगी, इधर की भी हो जाएंगी, सेम वैल्यू। जो वैल्यूज इधर की हैं सेम वैल्यू इस साइड की भी। क्लियर? और आपको कंसीडर क्या करना होगा, केवल इससे पहले वाला पार्ट, मींस केवल आपको इसका पूरा अगर एनालिसिस करना है, then you have to analyze only this part. You have to analyze only this part. बस, क्योंकि बाकी आगे का सारा वो है। अब इस लेग का क्या होगा, दिस वन लेग, इसका जो बीच वाली है, जो ये वाली आ गई बीच वाली, उसका क्या होगा जरा सोच के बताओ। क्या होगा उसका, क्या होगा इसका, क्या होगा, दिस वन लेग। भाई इसका तो हमने बनाई है, लेकिन इस वाले पार्ट का, दिस विल हैव, इफ दिस पार्ट इज ए बी सी, ये क्या था इसका, इसको मान लो अगर ये एफ है, इफ दिस पॉइंट इज एफ, देन वैल्यू ऑफ थीटा एफ विल बी 0।
इट विल नॉट हैव एनी रोटेशन। होगा क्या? देखो जरा, क्योंकि जब देखो इमेजिन करो, जितना रोटेशन सिमेट्री है, जितना रोटेशन इधर को उतना ही रोटेशन इधर को, नेट क्या होगा? जीरो। नेट वैल्यू विल बी जीरो। सो दिस लेग विल डज नॉट हैव एनी shear force or bending moment. This leg will not have any shear force or bending moment. बात समझ में आ रही है जो कहना चाह रहा हूं? मतलब इसका अगर BMD आप प्लॉट करोगे तो इसका इस तरीके से बनेगा। कितनी लेग्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। सो इसका तो ऐसे, इसका ऐसे और इसका दिस वन लेग डज नॉट हैव एनी बेंडिंग मोमेंट। ओके, और ऊपर का जैसा था, कैसा था? ये यहां पे यूडियल था, नहीं नहीं, ये बाकी आगे के उधर बना लेना उसका सिमेट्री। ये वाली लेग, इस पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स सब कुछ जीरो, एवरीथिंग विल बी जीरो, एवरीथिंग विल बी जीरो। ओके, सो तो नोट करके, इफ इन गिवन स्ट्रक्चर, if in given structure there is symmetry, there is symmetry about any leg, about any leg, about any leg, about any leg, then number one, leg will not have any, leg will not have any, leg will not have any shear force or bending moment, leg will not have any shear force or bending moment। दूसरा चीज, सेकंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ज्वाइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ज्वाइंट will be zero, degree of freedom at the joint will be zero, that is in our in given इस वाले फ्रेम में क्या है? थीटा एफ इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? इन गिवन स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ थीटा एफ इज जीरो, मीन्स कनेक्टिंग यही वाला, ये दिस वन ज्वाइंट, इसकी ज्वाइंट की बात कर रहा हूं, दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव बी जीरो, जीरो वैल्यू। ओके, तीसरा पॉइंट, final end moment at the joint, final end moment at the joint of symmetry, final end moment at the joint of symmetry will be exactly same, will be exactly same as half of, exactly same as half of the structure, as half of the structure, as half of the structure। ओके, नाउ तो ये नोट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ इसका एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं। इफ वी हैव दिस यूडीएल डब्ल्यू, दिस डिस्टेंस इज एल एल, कैन यू प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम?
नहीं फाइनली वो तो ठीक है, 1 आप आफ्टर सेविंग योर टाइम आप 1 कहोगे, बट है तो 3। ओके, तो जरा अभी जो मैंने ये सिमेट्रिकल ए बी है क्या? इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, देन वी कैन ट्रीट ज्वाइंट बी एज क्या? सिमेट्री, सिमेट्री पॉइंट इज बी। तो अभी मैंने आपको बताया अगर सिमेट्री पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ है? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हाउ मच? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। इसका मतलब है कि फाइनली सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मालूम है। इसका मतलब यह है कि सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मालूम है। क्या बताया मैंने? थीटा बी इज 0 हियर। सो इसका फाइनल एंड मोमेंट हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालें? ऐसे, इतना ही का तो होगा। अगर हमें इसका मालूम है तो दूसरे वाले का अपने आप मालूम हो जाएगा। और एक चीज हमें पता चल गई है कि थीटा भी 0 है, थीटा भी 0 है। ओके, तो अब इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या हम? व्हाट विल बी एम ए बी? एम ए बी फिक्स्ड मोमेंट कितना है? WL²/8 WL²/12 प्लस इसकी इक्वेशन क्या लिखें? एम ए बी की वैल्यू फिक्स्ड मोमेंट प्लस ये थीटा ए, यहां पे थीटा बी इक्वल टू 0 है ही है। नहीं हाँ, इसी को बस को एनालाइज करें तो ये इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट WL² कितना? 12 WL²/12। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको उधर करें हम, दिस वन यहां पर कितना करें? गलत किया यहां पे, ऐसे इस साइन पे तो माइनस WL²/12 और ये इधर जाएगा फिर कितना? WL²/24 माइनस का। ओके, और इसको मोमेंट ऐसे 3I/L और इधर कितना ट्रांसफर? 0। तो कितना इक्वेशन हो गया? MAB बराबर तो 0 हो ही गई, और MBA ओके। फिर से समझो, गलत हो गया। हमें इसका एंड मोमेंट निकालना है यूजिंग सिमेट्री। सो एक्सप्रेशन बेंडिंग मोमेंट हमें मालूम है, MAB की वैल्यू तो हमें मालूम है 0 है। MBA कितना होगा? MBA की वैल्यू फिक्स्ड इन मोमेंट WL²/12 प्लस कितना होता है? 2EI/L इंटू ये थीटा ए प्लस नहीं, हाँ थीटा ए प्लस 2 थीटा बी और इसकी कितनी होगी? माइनस WL²/12 प्लस
2EI/L इंटू थीटा 2 थीटा ए 2 थीटा है। अच्छा थीटा भी तो यहाँ पे 0 है ही है, थीटा भी तो 0 है ही है। ठीक है, थीटा यस यही है ना, थीटा ए। यहां से एम ए बी की वैल्यू यहाँ पे इक्विलिब्रियम, आफ्टर दिस अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन एम ए बी इक्वल टू 0। तो यहां से जरा इसकी वैल्यू बताओ, ई आई थीटा ए की वैल्यू बताओ, ई आई थीटा ए की वैल्यू कितना आया? टेल मी द वैल्यू ऑफ ई आई थीटा ए कितना? डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48। सो आफ्टर हैविंग दिस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 0। और ये वाली वैल्यू कितनी हुई? ये वाली वैल्यू इसमें जरा पुट करो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना? नहीं, इसको वैल्यू पुट करने के बाद ई आई थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद कितना आया? एम बी ए वैल्यू, वैल्यू ऑफ एम बी ए कितना आया? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। क्या कितनी वैल्यू आई? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इट मीन्स यहां पर दैट वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, दैट आई वांट टू टेल यू, दैट आई वांट टू टेल यू। क्लियर? ये इक्वेशन एक्सप्रेशन तो हमें मालूम है ना, उससे लिख लो, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI बाई एल डबल टाइम्स ऑफ थीटा ए प्लस थीटा बी तो ऑलरेडी 0 है ही है, ये हमें मालूम है। थीटा बी इज 0, तभी तो यहाँ पे फिक्स लगाया हमने। फिक्स क्यों किया? क्योंकि थीटा बी इज 0 और ये बी ए की वैल्यू, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एम ए बी इज 0। जैसे ही आपने 0 अप्लाई किया तो ई आई थीटा ए की वैल्यू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48। सही है ना ये वैल्यू? इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना वैल्यू आया? डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8 व्हाट इट्स मीन, और ये वैल्यू 0। इसका मतलब ये दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0 और ये डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, इसी को यहाँ पे अप्लाई करो, दिस वैल्यू इज 0, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इधर आया, इसका मतलब क्या है? इधर भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 0। ओके, सो दिस थिंग कैन सेव योर टाइम। क्लियर? इसके बाद बीएमडी वगैरह इसको बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। क्या होगा बीएमडी? ये यूडीएल ऐसे, दिस वन, दैट वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। वेरी सिंपल। क्लियर? सो with the help of symmetry, we can save our time. Okay, thank you.